Hello everyone. Today is your test of social science geography chapter number 1. So before sending you the PDF of test paper, let's revise the chapter number 1 of in geography, that is environment. So सबसे पहले बात करते हैं हम environment की कि environment होता क्या है. Children, environment is or we can say surroundings. हमारी surroundings वो आसपास का एरिया जिसमें अ लाइफ एग्जिस्ट और अ ऑर्गेनिज्म सर्वाइव, दैट इज नोन एज द एनवायरनमेंट. नाउ लुक हियर, एनवायरनमेंट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ द नेचुरल एंड ह्यूमन कंपोनेंट्स, and now these natural and human components are classified in two, that is biotic component and abiotic component. अब हम बात करते हैं कि बायोटिक कंपोनेंट्स और एबायोटिक कंपोनेंट्स में डिफरेंस क्या है और क्या कौन सी फैक्टर्स हम बायोटिक कंपोनेंट्स में रखते हैं और किन फैक्टर्स को हम एबायोटिक कंपोनेंट्स में प्लेस करते हैं. नाउ लुक, प्लांट्स, एनिमल्स, ह्यूमंस, अदर ऑर्गेनिज्म आर द पार्ट ऑफ बायोटिक कंपोनेंट्स. एंड अबायोटिक कंपोनेंट्स में लैंड, दैट इज लिथोस्फीयर, वाटर, that is hydrosphere, or air, that is atmosphere, are placed in abiotic components. Abiotic components are also known as natural components or physical components. ठीक है. Now look here, most important 2 points that all living beings together form biotic environment. जितने भी हमारी लिविंग बींग्स होते हैं, दैट इज प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, ह्यूमंस हैं और भी अदर ऑर्गेनिज्म जो रेस्पायर करते हैं. देखिए, लिविंग बींग्स ब्रीथ, तो जितने भी हमारे ऑर्गेनिज्म हैं जो ब्रीथ करते हैं, दे कम इन द कैटेगरी ऑफ लिविंग बींग्स. सो ऑल लिविंग बींग्स टुगेदर फॉर्म बायोटिक एनवायरनमेंट एंड ऑल नॉन लिविंग थिंग्स टुगेदर फॉर्म abiotic environment. Now what is land? Lithosphere. What is water? Hydrosphere. What is air? That is atmosphere. I will give you a brief description of these abiotic components. Have a look towards the board. Now let's learn about the natural environment, or we can say abiotic components, okay, or we can say physical components. So natural environment is classified in 3, that is lithosphere, land, hydrosphere, water, atmosphere, air. Now children, look, lithosphere. What is lithosphere? The solid outer layer of the earth comprising of the crust and upper mantle, that is known as lithosphere. And what is hydrosphere? Hydrosphere, water. अब वाटर से आपको ये क्लियर हो जाना चाहिए that what is hydrosphere? All the water bodies on the earth surface are known as hydrosphere or are placed in hydrosphere. And now the last is atmosphere, air, the envelope of air all around the earth. ठीक है. So these are the natural components of the natural environment. Now look, the most important point which is also related with this lithosphere, hydrosphere, atmosphere. Class, all these 3 components, which 3 components? These 3 components of the environment meet together to form a narrow zone of contact called biosphere. अगर आपको याद होगा तो जब when I explained this chapter, I have drawn a diagram of lithosphere, hydrosphere, atmosphere. उसमें एक इस जोन था जो ब्लैक पार्ट था, उसमें जिसको ब्लैक कलर से ड्रॉ किया था मैंने, दैट ब्लैक पार्ट नोन एज बायोस्फीयर. रिमाइंड दैट, रिकॉल दैट डायग्राम इन योर माइंड. अगर आपको वो वीडियो आपके पास है, देन ओपन दैट वीडियो एंड सी दैट डायग्राम. दैट डायग्राम विल बी हेल्पफुल in the clearance of these components. Now look, it is in the biosphere that a variety of life forms evolve and grow. अब biosphere होता क्या है? Biosphere वो होता है, वो biosphere वो एरिया है जिसमें लिविंग बींग्स हैं, लाइफ फॉर्म्स हैं, दे इवॉल्व एंड ग्रो.
ठीक है, now have a look on the board. Now look students, human beings are an integral part of the environment. They alter the natural environment to meet their needs. What is the meaning of this point? ह्यूमन बीइंग जो है हमारे एनवायरनमेंट का एक बहुत ही एसेंशियल इंपॉर्टेंट और इंटीग्रल पार्ट है. व्हाट दे डू, दे ऑल्टर द नेचुरल एनवायरनमेंट टू मीट देयर नीड्स. अपनी नीड्स को, अपनी नेसेसिटीज को फुलफिल करने के लिए वो हमारे नेचुरल एनवायरनमेंट में, जो हमारा एनवायरनमेंट है उसमें इंटरफेरेंस करते रहते हैं, उसको अपनी नेसेसिटीज के अकॉर्डिंग, अपनी ज़रूरतों के हिसाब से उसमें ऑल्टर करते रहते हैं. और इसका एक बहुत ही डिसएडवांटेज भी हुआ है कि उससे हमारा एनवायरनमेंट जो है बहुत ज़्यादा हर्ट हुआ है. अब लुक एट द नेक्स्ट पॉइंट. इन नेक्स्ट पॉइंट इट विल बी क्लियर टू यू. एक्सट्रीम ह्यूमन एक्टिविटीज और इंटरफेरेंस इन द नेचुरल एनवायरनमेंट डेरोगेट्स इट्स क्वालिटी. अब ये क्या है, ये जो इंटरफेरेंस, ह्यूमन एक्टिविटीज का जो इंटरफेरेंस है हमारे नेचुरल एनवायरनमेंट में, उसने हमारे एनवायरनमेंट की, हमारे एटमॉस्फेयर की जो क्वालिटी है उसको बिल्कुल डाउन कर दिया, डिग्रेड कर दिया है. सच ह्यूमन इंटरफेरेंस पोज अ सीवियर थ्रेट टू ऑल द लाइफ फॉर्म ड्यू टू द इकोलॉजिकल इम्बैलेंस. ह्यूमन बीइंग्स की इतना जो इंटरफेरेंस है, इतनी एक्टिविटीज़ हैं जो कि हमारे एनवायरनमेंट के लिए बिल्कुल भी हेल्दी नहीं है. उन सारी एक्टिविटीज़ ने हमारे एनवायरनमेंट को एक तरह से बिल्कुल ख़त्म होने की कगार पे लाके खड़ा कर दिया है, जिसकी वजह से अगर हमारा एनवायरनमेंट हर्ट हुआ है तो इट इज़ वेरी क्लियर कि एनवायरनमेंट में हम लोग सर्वाइव करते हैं तो वो कहीं ना कहीं हमारे लिए भी हार्मफुल है. तो इसको बैलेंस करने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हम ह्यूमन बीइंग्स, वी शुड नॉट इंटरफेयर, वी शुड नॉट प्ले अ गेम, वी शुड नॉट क्या कहते हैं, हमें किसी भी तरीके की हमारे एनवायरनमेंट से किसी भी तरह से छेड़छाड़ नहीं करना चाहिए. जो जैसा है, जो चीज़ जैसी है वैसी रहने देना चाहिए. हाँ, अगर हम उसको अपनी नीड्स के अकॉर्डिंग यूज़ करते हैं, तो मॉडिफाई करते हैं, तो ऑन द अदर हैंड हमें उसको बैलेंस करने की भी ज़रूरत होती है, जिससे कि हमारे एनवायरनमेंट में कोई भी बड़ा लॉस ना हो. ठीक है. सो अब बात आती है यहाँ पे, व्हाट इज इकोलॉजिकल इम्बैलेंस. नाउ आई विल टेल यू अबाउट द इकोलॉजिकल इम्बैलेंसिंग एंड इकोसिस्टम. हैव अ लुक टुवर्ड्स द बोर्ड. Now children, ecology and ecosystem, these two are the important terms of this lesson, जिन पर ही पूरा लेसन डिपेंड करता है. आप अगर इसको समझ लेते हैं तो आपको लेसन को समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी. तो लुक फर्स्ट इज इकोलॉजी. व्हाट इज इकोलॉजी? स्टडी ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड सराउंडिंग. जो हमारे लिविंग ऑर्गेनिज्म और उसके आसपास की सराउंडिंग के बीच का जो रिलेशनशिप है उसके बारे में हम स्टडी करते हैं. दैट स्टडी इज नोन एज इकोलॉजी. एंड व्हाट इज इकोसिस्टम? नाउ लुक, फॉर्म इकोसिस्टम इज फॉर्म्ड बाय द इंटरेक्शन ऑफ बायोटिक, अबायोटिक एंड केमिकल एनवायरनमेंट. क्लियर? नाउ दिस वाज द रिवीजन ऑफ फर्स्ट चैप्टर ऑफ ज्योग्राफी. तो अगर आप ये अच्छे से आपने इस चैप्टर को रीड आउट किया है, अंडरस्टैंड किया है, तो आपको टेस्ट पेपर करने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी. There are so many questions which I have given from the mid of the lesson. Some exercises are in the question form, some question answers are in the exercises form. तो confuse होने की ज़रूरत नहीं है. Do your test paper with very honesty and send it to me. ठीक है. One more important thing that on Thursday I am going to take your GK test. There are only 2 exercises in GK, but बेटा मैं एक बहुत अच्छी सी और इम्पोर्टेंट बात बताती हूँ आपको कि दैट नथिंग इज आउट ऑफ कोर्स, नथिंग इज आउट ऑफ सिलेबस इन जीके. अगर मैं कुछ भी आपसे कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन पूछ लेती हूँ तो यू कांट क्वेश्चन मी कि मैम दिस इज नॉट इन आवर बुक, दिस इज नॉट इन द एक्सरसाइज. ओके, बिकॉज जीके मीन्स जनरल नॉलेज एंड इट कवर्स एन वास्ट एरिया. ठीक है. सो गेट रेडी फॉर जीके टेस्ट ऑल्सो ऑन थर्सडे, और do this test paper and send it to me. We will meet soon with GK revision video. Till then, goodbye.